Hello, hello, hello. Let's start our motto. Yeah. Although each layer of the envelope performs distinct function, they act together as single protective unit जिसको हम बोलते हैं क्या? Cell envelope उसको. Bacteria can be classified into two groups on the basis of difference in the cell envelope. Difference in the cell envelope. Difference in the cell envelope. Now, and the manner in which they respond to the stinged procedure developed by gram-quiz. Those who take part in gram sting are gram positive and they do not take are gram negative. So gram negative basically they lose sting and gram positive they retain sting. मतलब क्या? अगर हम उसको स्टेनिंग करते हैं तो स्टेनिंग उसमें रहेगा ही ग्राम पॉजिटिव में, लेकिन नेगेटिव में वो लूज कर देगा. Next is glycocalyx. Glycocalyx differs in composition and thickness among different bacteria. It could be loose sheath called slime layer, and in some, while in others it may be thick and tough called capsule. The cell wall determines. अब आ गया मेरा फंक्शन सेल वॉल का. तो सेल वॉल determines the shape of cell and provides a strong structural support and prevent the bacterium from bursting or collapsing. अब नेक्स्ट क्या है हमारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन selectively permeable in nature and interacts with the outside wall. This membrane is similar structurally to that of eukaryotes. This line has come in neat. So I am writing neat. This should be neat. Oh, I have not changed the line yet. Oh, sorry, the color yet. Neat. This line has come in neat. Next. A special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicles, tubules, and lamellae. They help in cell wall formation. यहाँ पे लिखा है cell wall formation, DNA replication, and distribution to daughter cells. They also help in respiration, secretion process to increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content. अब एक बात सोचो, जब बहुत ज्यादा सरफेस एरिया है तो मेरा बहुत ज्यादा क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा. और देखो सरफेस एरिया ज्यादा है तो मेरा सिक्रेशन भी ज्यादा होगा, मेरा रेस्पिरेशन भी ज्यादा होगा, जो मेरा एंजाइमेटिक कंटेंट है, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं सेल में वो भी मेरा ज्यादा होगा. ठीक है, तो इसके बारे में आपको देखिए. और हाँ, सिक्रेशन से आपको ये भी ध्यान रखना है, जब वो सेल मेम्ब्रेन कुछ भी अगर सिक्रीट करेगा तो वो कहाँ जाके गिरेगा? तो वो सीधे जाके डिपॉजिट होगा आपका सेल वॉल पे. तो वो एक तरह से डायरेक्टली लिंक्ड विद द सेल वॉल फॉर्मेशन. नेक्स्ट. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophore which contain pigments. अब कुछ बैक्टीरिया में जो आपको क्या बोलते हैं, जैसे एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, जहां पे आपको मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर व्हिच कंटेन्स पिगमेंट्स, जो आपका यहाँ पे किसमें मदद करता है? जो आपका मदद करता है आपका क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नाम नहीं याद है अभी बस. यस, फोटोसिंथेसिस. ये आपका मदद करेगा फोटोसिंथेसिस. मैंने ब्लू कलर चूज करा लेकिन वो आया नहीं, सॉरी फॉर दैट. फोटोसिंथेसिस, इसको आप याद रखेंगे. नेक्स्ट.
बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। ये बैक्टीरियल सेल्स मेरा मोटाइल भी हो सकता है। आई डोंट लाइक दिस कलर। यस, नाउ इट्स फाइन। बैक्टीरियल सेल्स क्या हो सकता है मेरा? बैक्टीरियल सेल्स मेरा मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। किस केस में वो मोटाइल होगा और किस केस में वो नॉन मोटाइल होगा, ये हमको पढ़ना है। तो इफ मोटाइल, अगर वो मोटाइल होते हैं, सो दे हैव थिन filamentous extension from their cell wall called flagella. Bacteria shows a range in number and arrangement of flagella. जैसे आप ने बोला ना, एक फ्लैजिला हो तो उसको मोनोफ्लैजिला, दो हो तो उसका बहुत सारा अलग अलग नेम होता है। स्पिरुलिना में आप लोग भी देख सकते हो, दो फ्लैजिला होता है। इसमें एग्जांपल है स्पाइरल शेप का होता है। अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा, ये देखो। यस, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको देख लो, ये जो मेरा ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट अब है हमारा बैक्टीरिया shows a range in number and arrangement of flagella. Bacterial flagellum is composed of 3 parts. फ्लैजिला का मेरा कितने पार्ट्स होते हैं? मेरा 3 पार्ट्स होगा, ठीक है। एक फिलामेंट हो गया आपका, एक मेरा हुक हो गया, एक मेरा बेसल बॉडी हो गया। देखो, जब भी हम फिलामेंट की बात करते हैं ना, तो फिलामेंट मतलब क्या? एक लंबा सा ऐसे करके जो बना हो, इसी को हम लोग जनरली फिलामेंट बोलते हैं। फिर से बनाती हूँ, ऐसे ये जो लंबा सा पतला सा दिख रहा है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। तो जब ये सेल्स, मान लो ये सेल है, ये इसका बेसल बॉडी है जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये जो अटैच है इसको, फिर यहाँ पे आपका कुछ और आ गया, इसको बोलते हैं हुक। देखा है, हुक देखा है ना आपने, और ये आपका फिलामेंट आ गया, कुछ इस तरीके से। तो फिलामेंट yes, filament is the longest portion and extends from cell surface to the outside. Beside flagella, pili and fimbriae. बहुत क्वेश्चन आता है इससे। Pili and fimbriae also are surface structure of the bacteria but do not play role in the motility. मोटिलिटी में नो रोल। पिलाई क्या होता है? इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, इसको बोलते हैं पिलियन प्रोटीन। और फिम्ब्राई जो बना होता है, ये टिप्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। फिम्ब्राई आर स्मॉल ब्रिशल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। In some bacteria, they are known to help and attach the bacteria to rock streams and also to the host tissues. तो अभी हम लोगों ने इतना पढ़ा, और हम लोग अभी कहाँ तक करने वाले हैं? अभी हम लोग करने वाले हैं देख लेती हूँ मैं एक बार, ये माइक्रो बॉडीज तक है। प्रोकैरियोट्स लेकिन आज पूरा करके निकलेंगे प्रोकैरियोट्स में। और जब हमारा यूकैरियोटिक सेल आएगा तो इसको एक बार सिर्फ रीड करेंगे, उतने अच्छे से मतलब नहीं पढ़ना है, और डायग्राम को एक बार थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं इसको, या फिर ये कलर मेरा ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना, इसको लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा देखते हैं, ये मुझे ठीक लगा कुछ, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। क्या लिखा है इसका मतलब? कुछ समझ आया? कुछ नहीं ना, कोई बात नहीं, इसको ऐसे देखो, इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ। क्या मतलब? MTLB। अब देखो, मैंने इसको लिख दिया, एंड आई हैव रिटन पोस्ट, क्लिक ऑन पोस्ट, हो गया। लेकिन मैं इसको मतलब बताऊंगी आपको, मुझे ये पता ही ना, मैंने तो बताना ही है। सो राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मान लो तुम्हारा एक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, ये मेरा राइबोसोम है, ये मेरा राइबोसोम है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के साथ चिपके भी हो सकते हैं,
ये सेल साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं, या फिर ये रफ, एक मिनट, ऐसे नहीं बनेगा ये, इसको यहाँ पे बना देती हूँ। या फिर मेरा ये रफ एंडोप्लाज्मिक पे भी ये जुड़ा होता है, यही बात है इसकी, इसका मतलब यही है, ये सेल मेम्ब्रेन देख रहे हो यहाँ पे ये कैसे अटैच है, इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, तो they are about 15 nanometer by 20 nanometer in size and are made up of two subunits. दो subunits होते हैं, 50s and 30s, which units which when present together in the form of 70s in prokaryotic ribosomes. Ribosomes are the site of protein synthesis. Several ribosomes may attach to a single mRNA and form chain called polyribosome या फिर polysomes. Asked in NIM, so be prepared for it, as nobody is going to help you. और देखो जहां पर भी मैं ये टिक लगा रही हूँ ना, वो नीट में आ चुका है, ये समझना। तो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन नीट, ठीक है, छोटा सा टिक लगाते हैं, यस। The ribosomes of polysome translate mRNA into proteins. ये भी लाइन मेरा important है, इसको भी टिक लगाते हैं। हाँ जी, टिक लग गया, यस लग गया। राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट, देखो राइबोसोम यहाँ पे ना क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे एक मान में क्या राइबोसोम, ये राइबोसोम है, ये तुम्हारा 30s, ये तुम्हारा 50s, ये दोनों मिलके तुम्हारा 70s बनता है। अब तुम बोलोगे क्या कह रहे हो, ये तो 80s बनना चाहिए, नहीं, कुछ पार्ट इसके ओवरलैप कर जाते हैं, तो ये मेरा नहीं होता था, ठीक। अब ये जो राइबोसोम है, इसको कौन मैसेज करता है कि तुम ये प्रोटीन बनाओ, आरएनए, तो इसमें आप देख सकते हो इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज को देखते हैं। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक, reserve material in prokaryotic cells are stored in cytoplasm in the form of inclusion bodies. These are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm. Not bound. Example: phosphate granule, cyanophycin granule, glycogen granule, gas vacuole are found in blue-green algae. This question is again asked in NEET. पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। अब ये क्या हुआ पता है, ये तुम्हारे यहाँ से जो इंक्लूजन बॉडी वाला आपका जो पार्ट है, ये आपका नीट में इसके चारों लाइन दे दिए और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो बस। नेक्स्ट हम लोग कलर चेंज करेंगे और हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको देखते हैं ये कलर। नेक्स्ट, यूकैरियोट्स इंक्लूड्स, अब हम इसको एकदम एकदम जल्दी जल्दी पढ़ने वाले हैं, ठीक। Eukaryotes include all the protist, plant, animals, and fungi. In eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm. What does it mean? Extensive compartmentalization of cytoplasm. MTLB. इतना मैंने पोस्ट कर दिया, मैंने पोस्ट कर दिया। Yes. Through the presence of membrane bound organelles. Compartmentalizations मतलब वो compartment समझते हैं उसी तरह का। Eukaryotic cells possess an organized nucleus with nuclear envelope. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeleton structure. इसके पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स।
These genetic material, sorry, their genetic material is organized into chromosomes. जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, और डीएनए मेरा कैसे ऑर्गेनाइज होगा इन द इनटू क्रोमोसोम. नेक्स्ट, all eukaryotic cells are not identical. क्यों? पढ़ो. Plants and animal cells have are different as the former possesses cell walls, plastids, and large central vacuole, which are absent in animal cell. तो एनिमल सेल में क्या क्या एब्सेंट होते हैं? तो आपका लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता, बहुत स्मॉल होता है, नहीं तो नहीं होता. प्लास्टिड भी नहीं, सेल वॉल भी नहीं. ऑन द अदर हैंड डिफरेंस क्या है? एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स which are absent in almost all plant cells. अब तो ये तुमको देखना पड़ेगा. ये देखो, ये राइबोसोम भाई, यहाँ पे देखो रफ यार पे बैठे हुए हैं, कब्जा कर रखा है इन्होंने. इसको देखो, इसको देखो, देखो बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है बार बार. इसको मैंने को मिटाना है ये. यस, ये देखो. व्हाइट कलर मेरे को नहीं लगता दिखेगा ये, तो आई थिंक दिस कलर should be we should use this color. तो देखो, ये मेरा जो है, ये मेरा आपका जो उजला जो गोल गोल है वो मेरा हो गया तुम्हारा आरएनए, सॉरी राइबोसोम. ये मेरा आ गया लाइसोसोम, ये मेरा आ गया मेरा लाइसोसोम. अब इसको देखेंगे तो इसको पता चलेगा कि ये मेरा प्लाज्मोडेस्माटा, ये मेरा प्लाज्मोडेस्माटा है, ये मेरा लाइसोसोम है, ये मेरा लाइसोसोम है. ये आपका न्यूक्लियस हो गया. न्यूक्लियस भाई साहब आप इधर आ जाओ, न्यूक्लियस भाई साहब इधर हैं. अब ये मेरा न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस भाई मेरे आ जाओ, ये देखो, ये है न्यूक्लियस. ये गोल्जी अपैरेटस बहुत सारे फॉर्म में होते हैं, ये इसको हम देख लेना आप. हम देखो, ये न्यूक्लियर एनवेलप, ये देखो, ये कौन सा सेल है बताओ. इतने बड़े स्ट्रक्चर को देख के अगर बता दोगे तो समझ जाओगे. ये तुम्हारा प्लांट सेल है, ठीक है भाई. ये मेरा सेल वॉल है, ये मेरा सेल वॉल है. ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गया आपका. ये आपका राइबोसोम आ गया, खुला खुला खुला. ये क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट, ये साइटोप्लाज्म, ये पार्ट साइटोप्लाज्म, ये परऑक्सीजोम. अब देखो एनिमल सेल में, अब बताओ ये क्या है तुम्हारा? ये आपका है माइक्रोविलाई. ये देखो, ये कितना, ये देखो, ये लगता है न्यूक्लियस, ये राजा बन के बैठा है. ए राजा, मैं हूँ राजा, यहाँ पे एक चेयर लगा दो इनके लिए. और ये सारे को ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं. ये देखो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये देखो, गोल्जी बॉडी इधर आ जा तू. मैं हूँ गोल्जी बॉडी. ये बंडल में क्या रखा है? मैं इससे पूछ रहा हूँ. सेंट्रियोल, अरे ओ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल दादा, देखो मैं बंडल में, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. चल रहा था ये. चलो ना, let's understand this. Cell membrane, detailed structure of the membrane was studied. एक मिनट, हाँ. डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, देखो स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने पढ़ा था. विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल की स्ट्रक्चर हमको पता चलने लगा. तो स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन हमको कैसे पता चला? ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ, मतलब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s.
Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cell, enable the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. अब उसके बाद केमिकल स्टडीज भी होती हैं ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? तो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे साइंटिस्ट ने पता लगाया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है आखिरकार. So these studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins. Lipids and proteins से ये आपका बना होता है. हम लोगों ने फॉस्फोलिपिड पढ़ा था ना. देखो बस three major lipids are the major lipids are phospholipids that are arranged in bilayer. Bilayer का मतलब यहाँ पे दो लेयर नहीं होता, एक ऐसे एक ऐसे. जैसे पढ़ा है ना डिटर्जेंट में, आप लोगों ने पढ़ा था कि एक उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक टेल, और वैसे एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, इस तरह से. जैसे ठीक है, अब मैं आपको कैसे बताऊं, छोड़ो उसको. Also, the lipid are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tail towards the inner part. This ensures that non-polar tail of the saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. देखो ये लाइन ना मेरे को समझ नहीं आई, ये लाइन अपन को समझ नहीं आई, कोई बात नहीं. Okay. In addition to phospholipid, membrane also contains कोलेस्ट्रॉल. ये लाइन देखो, बहुत बहुत होशियार है. कोलेस्ट्रॉल भाई साहब, आप जाओ तुम. अब क्या होता है ना कि इसको पिंक कलर कर देते हैं. Now, I want to change the color, but not now. Yes, now I want to change the color. I want it to be the green. No, it's yes. उसको डिलीट कर. यस, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और जो क्लियरली रिवील करती है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी उनके पास होता है. तो रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज, और इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स वही आरबीसी 52% वहां पे प्रोटीन है और 40% लिपिड है. इसको आप लिख लो बच्चे, लिख लो इसको, ये काम आएगा. नहीं लिखोगे तो पछताओगे इसको. क्या कि जो आपका यहाँ पे 52% आपका मिलता है प्रोटीन प्लस 40% आपका लिपिड. एक मिनट, अब देखो ऑन द डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन membrane protein can be classified as integral and peripheral. Peripheral proteins lies on the surface of membrane while integral proteins are partially or totally buried in the membrane. दो तरह के प्रोटीन, एक हमारा इंटीग्रल प्रोटीन, सॉरी एक मेरा है पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरा है मेरा इंटीग्रल. पेरिफेरल मतलब क्या, ये सेल पे तुम्हारा लाई करेगा, सॉरी सरफेस पे तुम्हारा लाई करेगा. और जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो कहाँ पे तुम्हारा लाई करेगा, तो सेल तो उसके वो अंदर चला जाते हैं. ठीक है, और इट मे बी पार्शियली. नाउ लेट्स सी, इसका वो याद रखना, क्या बोलते हैं, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस. अब ये देखो,
ये आपका आ गया पेरिफेरल प्रोटीन। ये आपका आ गया पेरिफेरल। दिस इज योर पेरिफेरल प्रोटीन। क्यों? ये सामने में है, सामने में है। अब देखो ये आ गया मेरा इंटीग्रल प्रोटीन। ये थोड़ा अंदर में चला जाता है, ये थोड़ा अंदर में चला जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ये है मेरा फॉस्फोबाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यही बोल्ट, ये लेयर होती है। ये आपका बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल है, ये आपका शुगर है। नाउ an improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson 1972। improved structure मिला कब हमको? 1972। accepted as fluid mosaic model। according to this quasi-fluid nature of lipid, quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of protein within the overall bilayer। This ability to move within the membrane is measured as its fluidity। अब ये लाइन जिसको भी समझ आ गया वो सब मारो ताली, और जिसको नहीं समझ आया वो सब के लिए क्या है? इसको फिर से करेंगे हम लोग। मतलब MTLB। So yes, we are done with post। oh, इसको मैं इधर रखती हूँ। The fluid nature of membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junction, secretion। भाई अब बहुत बोल लिया, थोड़ा सा 2 मिनट रुको, मैं पानी पी के आ रही हूँ।
I need some time. So